Welcome to another episode of TSW. Today we are going to have a conversation about dating and technology. So I'm from the era of 90s, from the era of love letters and missed calls and landlines. But I'm very curious about modern dating and also how technology is making an impact. And who else can better explain this? Someone who is actually operating a dating application. Today, I have Snehil, who operates Truly Madly. It's one of the most popular dating applications in India. Welcome, Snehil. Welcome to TSW. How are you Thank you, doing? Kul. I'm good. How are you? So, how's a day like for a founder? No 2 days are same. Some days are like even 18 hours in a day or less. Some days are like कि हाँ आज संघर्ष है चलता रहता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ. सर, मुझे Many fires to fight. मुझे समझना है कि मॉडर्न इस सारे डेटिंग एप्स के ज़माने में एक सच्चा प्यार मिलना कितना मुश्किल है? यार बिल्कुल मुश्किल नहीं है बल्कि आई वुड से आसान है. आसान हो गया है बिकॉज in such busy lives, if you look at a person today who is say, so we target 26, 27 and above, people who are looking for something serious. अब वैसे बंदे के शूज में आप जाके देखो या वैसे लड़की के आप शूज में जाके देखो, दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम आउटसाइड ऑफ वर्क, दे हैव वेरी लिमिटेड नेटवर्क आउटसाइड ऑफ वर्क. स्कूल में अगर कॉलेज में आपको कोई नहीं मिला तो वेयर डू यू इवन गो, राइट? आप इंडिया में यू डोंट फाइंड समवन एंड कल्चर ही नहीं है. मैट्रिमोनी प्रोडक्ट थीसिस ही मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम कास्ट एंड गोत्र एंड फैमिली वेल्थ एंड कॉम्प्लेक्शन. तो आवर जनरेशन डज नॉट वांट दैट. तो अगर इफ आई एम अ 26, 27, 28 ईयर ओल्ड सिंगल who wants to find a serious life, who wants to find a person with whom I can think of settling down and think of starting a serious relationship, where do I go? So Truly Madly is that platform where people can connect with each other. So our job only is to curate the community and then provide them with tools to find each other. That's nothing else. We don't do anything else, right? Our features like compatibility assessment tool, trust score, they are all just tools to help you decide whether this person is right fit for you or not. In an outside world, outside of Truly Madly, outside of dating apps, how many new people are you even meeting in a month, let alone go on a date, right? It expands your possibilities, increases your probability of one going on a date and then eventually finding a life partner with whom you can settle down. So, for all the people who are watching our conversation, can you also explain what is the how does all this dating application actually work? Okay, if you can give a general overview and also of Truly Madly, of course, ये work कैसे करता है? How this thing functions? What are the algorithms under the hood? यार बहुत सिंपल है. सो अल्टीमेटली देखो, पहले बिहेवियर समझते हैं. दो जेंडर्स का बहुत डिफरेंट बिहेवियर है प्लेटफॉर्म पे. Correct. ठीक है. अ गाय लुकिंग एट प्रोफाइल्स, सो लड़कों का लाइक रेट रहता है नॉर्थ ऑफ 90%, राइट? सो फॉर एवरी 100 प्रोफाइल्स दैट दे विल सी, दे विल लाइक 90, राइट? बिकॉज उसको पता है यार मेरे हाथ में नहीं है, तो आई विल स्प्रे एंड प्रे, एंड जब मैच आ जाएगा ना तब डिसाइड करूंगा कि इससे बात करनी है कि नहीं करनी, राइट? ऑन दी अदर हैंड, बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, लड़कियों के साथ क्या होता है, एवरी लाइक दैट दे विल डू विल कन्वर्ट इनटू अ मैच, बिकॉज उनको सब नहीं लाइक किया हुआ है. तो दे आर वेरी स्केयर्स इन देयर लाइकिंग. तो एंड एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी, राइट, एंड दैट इज द थिंग दैट द एल्गोरिथम इज वर्किंग टू ऑप्टिमाइज. एंड अभी हम इसको कुछ 15% के करीब ले आए हैं, एंड मुझे नहीं लगता कभी भी 22, 23, 25% से ऊपर लेके भी जा पाएंगे, है ना? पॉस नहीं है. तो अब इसको अगर ऑप्टिमाइज करना है तो एल्गोरिथम क्या देखता है कि यार एक नई प्रोफाइल आई, अब उसको मैं n नंबर ऑफ इंप्रेशंस तो दूंगा, ठीक है? अब वो n हो, बट बियॉन्ड दैट कट ऑफ, एंड वो n वेरी भी करेगा कि वो n आपकी लोकेशन, एज, बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो n जो मिनिमम आपको कितना है, कितना कम या कितना ज़्यादा. एंड बट वंस दैट थ्रेशोल्ड हैज मेट एंड आई हैव कैलकुलेटेड कि दिस इज द लाइक रेट ऑफ योर प्रोफाइल, राइट? अगर आपको नहीं आ रहा है लाइक ज़्यादा, आई विल
not show your profile, because then your profile, either you have not built it right, or there are some mistakes which, or it's not appealing to the woman, तो वो एल्गोरिथम उसको रैंक डाउन कर करके धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. दैट इज द प्राइमरी रीजन कि बहुत सारे लड़कों को ये परेशानी आती है कि हमें मैच नहीं आते, क्योंकि भाई तुम्हें प्रोफाइल ही नहीं बनानी आती अपनी. तुम वही जिम सेल्फीज और गॉगल्स वाली फोटोज, ग्रुप फोटो डाल देते हैं यार. 4 लड़कों में से कैसे पता चलेगा कि तू कौन है इसमें से, करेक्ट. राइट? तो वो उनको ना अभी समझ ही नहीं है. वो गलती करते हैं, और फिर एल्गोरिथम उनको पेनलाइज करता है, बिकॉज एल्गोरिथम विल नॉट वेस्ट, मतलब इट्स नॉट इवन अबाउट वेस्टिंग इंप्रेशन, इट इज अबाउट एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. इफ द गर्ल इज लुकिंग एट एंड प्रोफाइल्स एंड नहीं पसंद आ रही उसको कोई वो प्रोफाइल, तो वो चली जाएगी ना ऐप से ही, राइट? एंड दैट इज व्हाट द एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेस फॉर. यार एटलीस्ट हमारा यार लड़की का लाइक रेट शुड बी हाई, तो बाकी सब तो एंगेजमेंट विल बी हाई. और अगर किसी को एक मैच आ जाता है तो उसकी रिटेंशन अपने आप हाई हो जाती है. Correct. Right. So basically, a lot has to do with the way a person has built their profile. Yes. And then there are certain things which you have suggested, say gyms ki selfies and something. तो Yes. अच्छे से अगर आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करो, then there are chances that the algorithms will be in your favor, right? बिल्कुल. देखो आ तो रही है ना लोगों को मैचेस, लड़कियां आके लाइक तो कर ही रही हैं. Correct. तुम्हें बस ये देखना है कि तुम उस 15% में कैसे आ पा रहे हो, Correct. है ना? तुम्हें उस 85% में नहीं जाना. Also, just want to understand, like, especially, is it applicable for all the platforms that are there, or is it just with Truly Madly? यार हर प्लेटफॉर्म का अलग रहता है, अलग रहता है. हर किसी की न्यूआंस अलग रहते हैं. अब ये वाला जो बिहेवियर है, इंडिया स्पेसिफिक बिहेवियर है, ऐसा नहीं है यूएस में नहीं है. हम लोग इंडोनेशिया वगैरह में देखते हैं, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है बिहेवियर. बहुत डिफरेंट बिहेवियर है. बिहेवियर यहाँ का ऐसा है, तो फिर एल्गोरिथम को भी ऐसा काम करना पड़ता है. बट अल्टीमेटली सब कोई मैच रेट, मतलब ये तो ट्रूथ है यार कि अगर मैच आएगा तो ही बंदा टिकेगा ऐप पे, है ना? मैच नहीं आएगा तो अनइंस्टॉल कर देगा. तो हर कोई रिटेंशन तो चाहता ही है. तो किसी और तरीके से सही, हर कोई ऑप्टिमाइज तो मैचेस ही करने की कोशिश कर रहा है कि नंबर ऑफ मैचेस बढ़े. अब हमारे वाले केस में लड़की का लाइक रेट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मैचेस बढ़ रहे हैं, तो हम उसके लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. किसी और ज्योग्राफी में कुछ अलग होता होगा. सो एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि डू यू थिंक लुक्स आर लाइक आल्सो अ बिग पार्ट, लाइक आपको अच्छा दिखना इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, क्या यार- इज इट अ कॉकटेल ऑफ एवरीथिंग? यार सी लुक्स आर वेरी सब्जेक्टिव, करेक्ट. है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दो डिफरेंट, अपनी पहचान में भी दो डिफरेंट लड़कियों को डेटा देखें एंड उनसे पूछे कि यार ये लड़का तुम्हें कैसा लगता है, एंड दूसरे से पूछे, उनका आंसर डिफरेंट होगा, करेक्ट. है ना? तो सेम वे एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है कि यार इस लड़की को ये टाइप की प्रोफाइल्स पसंद आ रही हैं, इसको ऐसी वाली दिखाओ, है ना? थोड़ा सा अलग नया रहता है. अगर मतलब 10 में से 3 विल बी टू फाइंड समथिंग न्यू, कि यार ये भी पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड 7 विल बी कि यार ये हमें पता है कि इसको अच्छी लगती है, ये वाली दिखाओ, कि लोग इस टाइप के. एंड वो ना हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, बिकॉज लुक्स आर वेरी सब्जेक्टिव, अट्रैक्शन इज वेरी सब्जेक्टिव. बट जो फंडामेंटल्स हैं कि यार आप टर्न ऑफ, देखो सबसे पहले तो है ना कि आपको बस ये करना है कि आप टर्न ऑफ तो नहीं कर दे रहे. फॉर एग्जाम्पल जिम सेल्फी, 6 पैक एब्स, गॉगल्स वाली फोटो, ग्रुप फोटोज, ये टर्न ऑफ ही कर देती हैं. तो अभी लड़की ने ये तो सोचा ही नहीं कि मेरे को ये पसंद है या नहीं पसंद है करके निकल गई आगे. करेक्ट. है ना? तो वो वहां पे लोग गलती कर देते हैं. अच्छा, ये मेरे कई दोस्तों के साथ भी मैंने देखा, ये फिनोमेनन ना, काफ़ी ऑनलाइन इसके बारे में मैंने पढ़ा भी कि कई लोग क्या करते हैं कि डेटिंग ऐप डाउनलोड किया, खूब ट्राई किया, मैचेस नहीं मिले या फिर बात नहीं जमी, फिर अनइंस्टॉल कर दिया. फिर 2 महीने बाद उनको दौरा आया, फिर 50% people who uninstall our app reinstall the app in their lifetime. this is a 50% rate है. हाँ, So reinstall का. amazing. Now, like, coming to the tech part of it again, now that AI is there, and when we talk about AI, so how AI, first of all, as a product, how AI is going to enhance or make it better in terms of the dating scenario, especially on these platforms, on your platform also. So
especially the new kind of AI, the rebirth of AI. And then we'll talk about Generative the user side as well. But from the as a product, what changes you think are going to happen? या 2-3 प्लेसेस में काफ़ी अच्छा यूज़ केस है एआई का, जहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से लेवरेज भी कर रहे हैं उसको। वन इज़ दी कंटेंट मॉडरेशन एंड द ओवरऑल क्यूरेशन ऑफ द कम्युनिटी। तो वी हैव अ प्रोप्राइटरी एआई एल्गोरिथम, इट्स अ गेटकीपर एल्गो, which we have nicknamed Chalk AI Dar, right? And so what Chalk AI Dar does is it works on 5 layers. First, it checks that there should be a human face in the photograph. आप कोई भी और डेटिंग ऐप उठा के देखो, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, मतलब गुड मॉर्निंग वॉलपेपर, सनफ्लावर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रूली मैडली। यू विल नेवर फाइंड एनी नॉन ह्यूमन फेस का फोटो, right? Because we don't allow that. We reject 42% of profiles who apply to become a member on Truly Madly, right? तो सबसे पहले ये देखता है कि यार कोई फेस होना चाहिए, देन वो देखता है कि वो फेस किसी सेलिब्रिटी का नहीं होना चाहिए। फॉर सम रीजन मोदी जी की एंड विराट कोहली की फोटो बहुत, तो सेकंड इज दैट देयर इज नो सेलिब्रिटी फोटो। देन थर्ड, इट चेक्स दैट देयर इज नथिंग, देयर इज नो ऑब्सैनिटी, देयर इज नो एंड देयर इज नो ऑब्सैनिटी इन द फोटो। Then it checks that there should be nothing written any on the photo, be it any phone number or email ID, कुछ भी लिख देते हैं लोग, there should be no text. And then last it matches with the gender, कि लड़के ने बोला है, इस प्रोफाइल ने बोला है कि मेरा जेंडर मेल है, तो फोटो से भी हमें जेंडर मेल है, राइट? बिकॉज वो नहीं तो वो गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो ये 5 चीज़ें हम हमारा एआई करता है विद इन। जैसी आपकी प्रोफाइल लाइव हुई, अब जैसे आपने प्रोफाइल अपलोड करी, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी ये मॉडरेशन हो जाती है, एंड देन फिर एक मैनुअल क्यू में चला जाता है, जहाँ पे एक मैनुअल, एवरी प्रोफाइल दैट गोज लाइव ऑन टीएम गोज थ्रू बोथ मैनुअल एंड एआई मॉडरेशन फनल। तो दैट इज हाउ वी क्यूरेट द होल सिस्टम। तो एक तो एआई का मेजर यूज केस है यहाँ पे। दूसरा देन आ जाता है कि जो हम एल्गोरिथम, जो मैंने बताया कि हम लोग ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि फीमेल का लाइक परसेंटेज, तो इन अ वे हम फीमेल का रिकमेंडेशन एल्गोरिथम है ना, कि फीमेल की ये चॉइसेस हैं, तो इसको इन चॉइसेस के बेसिस पे लर्न करके क्या एल्गोरिथम नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोफाइल, जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स है, आपने कोई 4 रील अगर एंगेज कर ली, अगली 10 रील आपको उससे रिलेटेड आती है, राइट? तो दैट इज व्हाट कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आ गए हैं, जो इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाई करके बना रहे हैं नेशंस। तो दूसरा यूज केस आ जाता है यहाँ पे कि यार क्या हम लाइक रेट को 15 से अब 25% लेके जा सकते हैं? तो दैट इज वेयर द होल एआई विल कम इनटू प्ले। अच्छा, फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, अगर किसी यूजर ने एआई जनरेटेड इमेज क्रिएट कर रखी है, विल योर एआई बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रियल इमेज? अभी तो पता लग जाता है बहुत आसानी से। करेक्ट, अभी तो पता लग जाता है अच्छा, मेरे को, क्योंकि अभी तो यार इवन नेकेड आई को भी पता लग जाता है ना। अभी उतनी रियलिस्टिक नहीं है। मेरे को नहीं पता अगले 2-3 साल में क्या होने वाला है, बट देन अगेन वो भी बन जाएगा कि मतलब विल बी एबल टू नो कि यार ये समथिंग और द अदर विल बी देयर, जिससे पता लग जाएगा कि इट्स एन एआई जनरेटेड इमेज। And what if, say, this is something which I saw it on Twitter or Instagram itself, right? Like how people are using AIs to analyze the content, the conversation they had on the chat, and then they're like strategizing how to go about it. For instance, take a help of AI chats. For instance, my writing skills or my game is not what's called. So it's not that great, for instance. But still, if I can use help of use AI, for instance, I can start be creative and all. So do you think it's a gray area where dating is taking help from a friend to decide यार कि अच्छा ये इसका क्या रिप्लाई करो, Correct, इसका ऐसे, correct. is it gray area? No, not really. Then it is not. आप एक विंगमैन की हेल्प ही तो ले रहे हो ना, Correct, correct, दोस्त की जगह पे एआई की ले रहे हो, correct, correct. बट दोनों ही बिकॉज आप ऑथेंटिक नहीं हो रहे हो इस वक्त में अपने पार्ट, जो भी जिससे आप बात कर रहे हो, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट? बिकॉज अभी तो आपने कर लिया, मान लो बेस्ट केस सिनेरियो, एवरीथिंग गोज वेल, you guys decide to either get on a call, video call or a offline meet date, तब क्या करोगे?
ऐसे तो बहुत सारे है ना? बॉलीवुड मूवीज का सेम प्लॉट है। एग्जैक्टली राइट। तो वो सेम, मतलब वो उसमें एआई का कोई दोष नहीं है, है ना? वो पहले दोस्त के थ्रू होता था, अभी उसने दोस्त की जगह सोचा यार चलो एआई जल्दी जवाब दे देगा, एआई से कर लेते हैं। बट राइट, बिकॉज अल्टीमेटली आप ऑथेंटिक सेल्फ को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, एंड ग्रे क्या ही अपना ही नुकसान कर रहे हो ना, बिकॉज अभी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई उसकी कि यार ये तो इतने अच्छे से बात करता है, इतने अच्छे रिप्लाई करता है। अब तुम सामने जब डेट पे जाओगे, बुत बन के बैठ जाओगे, तुम्हें ना कुछ बात करनी आएगी, बात करोगे भी तो वैसी नहीं होगी जो तुमने एक्सपेक्टेशन बिल्डअप कर दी। करेक्ट। तो अब जो, क्योंकि अगर वो ये तुमने ना किया होता और एक ऑर्गेनिकली स्टेज पे पहुंचे होते, तो सक्सेस ऑफ दैट डेट के चांसेस बहुत हाई होते, वर्सेस अब बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन यहाँ की सेट है और तुम तो वहां पर ये हो, करेक्ट। है ना? तो ये जो इतना बड़ा गैप है, दैट इज योर एनिमी। सो एक बिफोर आई मूव ऑन टू अदर थिंग्स, लाइक डेटिंग ऐप है किसके लिए? लाइक हु शुड यूज डेटिंग ऐप? यार डिफरेंट डेटिंग एप्स डिफरेंट लोगों के लिए है। हमने जब अपना डिसाइड किया था, एंड दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड कि यार अपने को 26 प्लस को टारगेट करना है। आवर टारगेट वाज कि यार पीपल हु वांट टू डू अ लव मैरिज, है ना? इसलिए अपना टैगलाइन भी है स्टार्ट योर लव स्टोरी। करेक्ट। कि अगर आपको लव मैरिज करनी है ना, तो आप कहाँ जाओगे? मैट्रिमोनियल पे तो नहीं जाओगे, बिकॉज करेक्ट। लव मैरिज करने के लिए आपको कास्ट गोत्र से क्या लेना देना। आप अरेंज मैरिज सेटअप में भी नहीं जाओगे। तो अगर आपको लव मैरिज करनी है, खुद से ढूंढना है आप, एंड मेरे को ऐसा लगता है यार वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन मैरिजेस, राइट? एंड इट्स अ डैम बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी वांट टू हेल्प यू इन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एंड जब आप आज से 10 साल पहले देखो, 2015 2014, एवरीबडी वुड गेट मैरिड एट 24-25, है ना? अभी सेम ही घर के आप छोटे सिबलिंग्स देखो, तो वो 30-32 पे भी नहीं किए, नहीं कर। है ना? तो वो नाउ, सो व्हेन यू वुड मैरी एट 24-25, you are young, you are moldable, and you will then grow together. But when you are marrying at 27, 28, 30, you are pretty much set in your own ways, and hence you understand the importance of compatibility in a life partner. करेक्ट। अब जिसको कंपैटिबल पार्टनर ढूंढना है, जो समझता है कि यार कंपैटिबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है एक रिलेशनशिप में, कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, एंड आपको पता है कि यार टिंडर की तो पूरी पोजीशनिंग कैजुअल वाली है, तो वहां पे बहुत कम हो जाता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग समवन। तो आप जब उस यूज केस से ग्रेजुएट करोगे, तो जब आप उस यूज केस से ग्रेजुएट करोगे, यू वोंट गो ऑन अ मैट्रिमनी वेबसाइट ऑफ कोर्स, तो दैट इज वेयर वी कम इन। तो वो सब लोग हमारे पे आते हैं, and then they want to find a compatible life partner. That is what we provide them as a platform. Correct. So do you think it's very dystopian also? I remember the one of the Black Mirror episode where Hang the DJ. yeah, correct, Hang the DJ episode where the algorithm was adamant on pairing two people or separating them as well. So do you think that at some point people will get influenced the other way around? Nowadays, like right now we are deciding, right? But what if AI says, continues to say, जैसे पहले होता था ना कि अरे इसके तो इतने गुण यार मिल गए। देखो, If AI starts doing that, उससे होगा क्या ना, जब तक वुमेन विल नॉट डिसाइड कि मेरे को एआई बस रेकमेंड कर सकता है ना, इट कैन नॉट फोर्स यू टू बात कर। करेक्ट। एंड दैट एपिसोड वाज लाइक ना, उसको ऐसे ऐसे देख सकते हो कि उसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट में चले जाओ ना, अगर उसके एक ब्लैक बॉक्स AIML एल्गोरिथम के अंदर शायद ये हो कभी आगे जाके कि यार ये दो लोग हैं, लेट्स प्ले आउट देयर लाइव्स, है ना? एक डिजिटल ट्विन इनके बना के लेट्स प्ले आउट देयर लाइव्स, हाउ विल देयर लाइफ बी टुगेदर। करेक्ट। अब देखो एस्ट्रोलॉजी है, देखो हमारी ऐप पे हम कंपैटिबिलिटी भी देते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी भी देते हैं, जिस चीज पे आप बिलीव करते हो आप वो करो। तो एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या है, विल डाई और समथिंग। दूसरा फिर वो देखते हैं कि इनका जो बोलते हैं ना कि शादी का योग है, ओवरलैप बन रहा है क्या इन दोनों लोगों के शादी के योग का? करेक्ट। करेक्ट। राइट, एंड देन फिर आगे सब कुछ होता है।
राइट? तो वो इन अ वे वो भी आगे का प्ले आउट करके देख रहे हैं ना कि यार इनका लाइफ आगे कैसी रहेगी, सही चलेगी नहीं चलेगी। करेक्ट। तो एआई कैन, इफ एन एआई कैन क्रिएट अ डिजिटल ट्विन ऑफ यू with say 90-95% accuracy of your decision making and your likings and disliking, or how your liking and disliking will evolve over time over the next decades. करेक्ट। अगर उतना एक अच्छा एआई बन जाता है कि वो सिनेरियोज भी उसने सारे प्रिडिक्ट कर लिए, सब सिनेरियोज के क्या क्या आउटकम्स थे वो भी प्रिडिक्ट कर लिए, एंड आप दोनों की डिजिटल ट्विन की पूरी लाइफ देख ली उसके बेसिस पे, तो हैंग द डीजे में इन अ वे वो हो रहा था बिकॉज वो सब कुछ सिमुलेशन ही था ना, वो दोनों तो एक्चुअल में वहां पे बस खड़े ही हुए थे, वो सब कुछ इमेजिनेशन में या किसी सिमुलेशन में चल रहा था, सिमुलेशन में चल राइट? रहा था, राइट। तो वो सिमुलेशन एआई कैन डू दैट इन सेकंड्स। तो आगे जाके हो सकता है ऐसे एआई आके ऐसे एआई मैच मेकर बन जाए डिजिटल, आप बस अपना सब कुछ, आपका इतना सारा डेटा है, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप, ये वो Correct. सारा डेटा कंज्यूम कर लिया, हाँ। आपके साथ कुछ Correct, क्वेश्चन एंड correct. आंसर कर लिए, बना लिया उसने आपका एआई ट्विन। अब दूसरे एआई ट्विन से वो आपकी सिमुलेशन में देख रहा है कि यार लाइफ कैसी रहने वाली है, वो बता देगा इन सब में आपकी लाइफ सबसे बेहतर इसमें रहेगी। बट तब भी लड़की को पहले एग्री करना पड़ेगा ना, क्योंकि एआई तो सिर्फ रेकमेंड ही कर सकता है, एल्गोरिथम सिर्फ रेकमेंड ही कर सकता है, डेटिंग ऐप सिर्फ रेकमेंड ही कर सकती है। Now coming to the, if you look at the dating space altogether, right? Do you think, I just, as a founder also, first of all, I want to understand, why did you start a dating application? And then you can give me a walkthrough of like how an Desi dating app is different from the global version of it. श्योर यार, तो स्टार्ट करने का तो ऐसे आया था, वी वर थिंकिंग व्हाट आर द पॉसिबल डिसरप्शंस। वन वाज क्लासिफाइड्स में क्या, क्योंकि ये तो तब की बात है जब हमने सोचना इसमें तब शुरू किया था जब न्यूज़पेपर्स में भी क्लासिफाइड्स पे वो आता था, एंड मैट्रिमनी में कोई डिसरप्शन कुछ हुआ नहीं था, 10 साल से वैसा ही चलता आ रहा था। बट वी कुड सी कि यार लोग तो काफ़ी बदल गए हैं, लोगों के शादी करने की एज बदलती जा रही है, तरीका बदलता जा रहा है, रिलेशनशिप्स बदलते जा रहे हैं। टुडे योर एंड योर वाइफ्स रिलेशन विल नॉट बी सेम एज योर फादर एंड योर मदर्स रिलेशन, राइट? Correct. तो जब रिलेशनशिप्स इतना बदल गए हैं, जेंडर रोल्स इतना बदल गए हैं, तो मीडियम ऑफ फाइंडिंग द पार्टनर विल ऑल्सो नीड टू इवॉल्व ना। दूसरा, माई सिस्टर वॉज ऑन अ मैट्रिमनी साइड एंड वी गॉट स्कैम्ड, ऑलमोस्ट गॉट बैडली स्कैम्ड, एंड उसने कुछ तो कि आई एम अ दुबई बेस्ड इंटरनेशनल बिजनेसमैन एंड हेलीकॉप्टर चार्टर का बिजनेस है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, बात चली 1 महीना। लकीली मैं उस वक्त में, दिस इज 2010-11, आई वॉज इन माई थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, एंड मैं उस टाइम पे ना समझ रहा था कि क्या कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या टाइप की कंपनी होती है। तो लकीली आई न्यू किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उनकी वेबसाइट पे जो वो वेबसाइट वगैरह सब बनी हुई थी, हेलीकॉप्टर चार्टर करने की वेबसाइट है, ये है वो है। मैंने जाके कंपनी का नाम उठाया, चेक किया, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। तो तब थोड़ा सा हमें खटका कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो वन ऑफ द बेसिक पिलर ऑफ ट्रूली मैरिड इज ट्रस्ट स्कोर, where you can so it ranges from 0 to 100, and you can increase your trust score by linking your national ID like Aadhaar, passport, driving license, etc. Then you can link your social accounts, then you can do a selfie verification where we run a facial recognition scan of your face and ensure that all the photos that you have uploaded are of the same face. Then we have a tie-up with CRED. If you're a CRED member, that means कि आपका KYC भी हुआ है आपका, राइट? बिकॉज 750 से नीचे को तो अलाउ ही नहीं करता। तो if you're a CRED member, you get 100% trust score and with a different batch of CRED, तो उससे आपको वो भी पता चलता है कि यार ये फाइनेंशियली भी वाइस है बंदा, सिविल स्कोर बिगाड़ के नहीं रखा हुआ है इसने। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच देन हेल्प यू डिसाइड नॉट ओनली कि यार ये कितना ट्रस्ट कर सकते हो, बट ऑल्सो कि ये बंदा कितना सीरियस है कि उसने अपनी प्रोफाइल, क्योंकि ट्रस्ट स्कोर बढ़ाया हुआ है कि नहीं। एंड इनफैक्ट अगर आपका ट्रस्ट स्कोर 80 से ऊपर हो तो आप चाहे फ्री मेंबर भी हो तो भी आपको एल्गोरिथम ऐसे ट्रीट करता है कि आप पेड मेंबर हो, यू गेट सेम boosting factors as a paid member vote. The second part was like how an Indian dating app must be different and should be must be different from
the global versions of it because our cultural values बिल्कुल यार, our तो इंडिया approach में is इतने different. सारे न्यूआंसेस है ना. फॉर एग्जांपल बिगेस्ट वन, हमारी ऐप पे देयर इज नो रेडियस फिल्टर, Okay. राइट? ऑल बिकॉज रेडियस फिल्टर तो आप फर्स्ट वाज अ यूज केस फॉर अ हुकअप, कि यार 10 किलोमीटर के अंदर तो उसी से मिलना है ना जिससे आप आज ही मिलना चाहते हो, राइट? बिकॉज टिंडर, बम्बल, ये सब हुकअप्स के लिए डिजाइन किए गए थे. Correct. तो वी थॉट कि यार नहीं, ये तो हमारा यूज, बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू लिमिट योर सेल्फ विद इन फ्यू किलोमीटर्स व्हेन यू आर फाइंडिंग फॉर अ लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर. हम्म. तो क्यों अपना आप रीच, मतलब अपना पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज को क्यों लिमिट करना चाहोगे? सेकेंडली वी सॉ कि यार हमारे जो एक्चुअली अगर आप सक्सेस स्टोरीज देखो, स्पेशली फ्रॉम टीयर 2 एंड टीयर 3, गर्ल इज फ्रॉम वाराणसी, गाय इज फ्रॉम लखनऊ, गर्ल इज फ्रॉम भोपाल, गाय इज फ्रॉम इंदौर, गर्ल इज फ्रॉम सिलीगुड़ी, गाय इज फ्रॉम कोलकाता. सो सब 200 300 400 किलोमीटर दूर, सिमिलर कल्चर बट नॉट दैट फार, एंड और इट स्टार्ट्स एज अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड देन एंड्स अप मैरिंग. तो एंड मतलब ये सब कुछ न्यूआंसेस हैं जो हमने अपने एल्गोरिथम में डाल रखे हैं. अब जब हमें इतना ज्यादा है तो वी नो कि यार अब मैं बॉम्बे की लड़की को नागपुर का लड़का दिखाऊंगा तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट मैं नागपुर की लड़की को बॉम्बे का लड़का दिखा सकता हूँ, बॉम्बे के लड़के को नागपुर की लड़की दिखा सकता हूँ, वो गड़बड़ नहीं होगी. सिमिलरली सीए एंड सीए टेंड टू डेट एंड मैरी, CACS कम्युनिटी जो है पूरी, अच्छा. राइट? डॉक्टर्स टेंड टू डेट एंड मैरी डॉक्टर्स, राइट? देन अगर आप बट आप रहते हो वो नोएडा में, Correct. हम आपसे पूछते हैं कि वेयर डू यू लिव, वेयर यू फ्रॉम, तो और भी कोई होगा अगर पटना से नोएडा में है, मैं आपको उससे भी मिलाऊंगा. Correct. कोई बात नहीं, कोई पटना में ही है बट मुझे लगता है कि यार वाइब बन सकता, मैं आपको उससे भी मिलाऊंगा. Nice. ये सब जो नुआंसेस है ना, ये सब इंडिया के नुआंसेस हैं. तो ये हमने अपने एल्गोरिथम, एंड ऐसी और भी मतलब आई कैन जस्ट कीप ऑन एंड गोइंग ऑन नहीं ना, ऐसे बहुत सारे नुआंसेस हैं जो हमने अपने एल्गोरिथम में डाले हैं, एंड वो इंडिया स्पेसिफिक नुआंसेस. So can you also give me a walkthrough like how has your platform grown over the years? If you can share some metrics with us. Yeah, so recently we crossed 1.5 crore downloads. That's 15 million plus in fact, not just downloads, registered users. So we have now 15 million plus registered users. Nice. In coming to again, this came to my mind also, especially the security part, right? Now it's not just a fake profile, someone trying to scam, but now if you see, there are stories of people scamming on dating app. The person who invites you to say a cafe, they order exuberant drinks and then they leave you and they have fun, and also the cafe owners is also वो तो involved. कैफे It's a big ओनर्स का scam, स्कैम right? है. हाँ. But then and if you look at the kind of incidents in there, this is pretty common also. So in such scenario, what is the onus on the dating application, and what should be the default security features for men as well as women? यार तो इसमें हम लोग एक चीज करते हैं, बहुत ही वो ना, देखो इसी अल्टीमेटली इट्स अबाउट अवेयरनेस एंड एजुकेशन. बिकॉज ये जो होता है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेटिंग एप्स पे होता है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी बहुत होता है. एंड लड़कों को बस हमें ये समझाना है कि यार बिकॉज वी आर सीइंग कि अदर एप्स पे क्या हो रहा है. एंड पहले क्या होता था ना कि हम लोग जो आके ऐप पे बात करते थे, हमारे को पैटर्न्स तो बदल जाते थे, तो कीवर्ड स्पॉटिंग एंड रेड फ्लैगिंग से हम कस्टमर को भी वार्न कर देते थे और प्रोफाइल भी हटा देते थे. तो अब इनको समझ आ गई कि यार ये तो पकड़ लेते हैं. तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज कि शुरू में ही अपना टेलीग्राम या फोन नंबर भेज दिया कि यार आई कम ऑन दिस ऐप वेरी ऑफन, लेट्स चैट ऑफलाइन या ऑन व्हाट्सएप और ऑन इंस्टाग्राम. Correct. अब लड़का खुश होता है, अरे वहाँ नंबर आ गया है ना. बट तुम सोचो क्या है तुम में ऐसा कि भाई लड़की सामने से तुम्हारे बिना मांगे पहली ही बारी में नंबर दे रही है. एक बारी ये सोच लोगे तो सही डिसीजन पे पहुंच पाओगे, राइट? तो फिर हमने क्या किया कि यार चलो लोगों की बुद्धि पे नहीं जाते. अब अगर कोई सामने से ऐसे शुरू में ही नंबर आ जा रहा है ना, हम वहाँ पे बड़ी बड़ी वार्निंग दिखाते हैं, प्लीज बी वेरी अवेयर एंड बी वेरी कंजर्व. मतलब हम तगड़ी वार्निंग दे देते हैं कि यार डू नॉट मूव दिस कन्वर्सेशन आउटसाइड ऑफ द ऐप टिल द टाइम यू आर रियली श्योर कि यू ट्रस्ट दिस पर्सन, राइट? अब हमारा काम होता है कि एक बार यार सीड डाल दो कॉशन का कि टू अर्न ऑन द साइड ऑफ कॉशन,
सही हुई कुछ 5-7% के एक्चुअल में ऐसे होते होंगे कि यार प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी अरे बट मेरे से छूट जाती है बात नहीं कर पाती, बट बहुत रेयरली ही ऐसा होता है, बट यू है ना। एंड दूसरा हमें ना जैसे मैंने बताया ना बहुत सारे हमें पैटर्न्स पता होते हैं। एक रियल लड़की का जो अब मैं यहाँ पे बता नहीं सकता नहीं तो उन्हें पता चल जाएंगी चीजें कि क्या क्या चीजें हैं जिस वजह से हमें पता जाता है, बट एक रियल लड़की जो रियल यूज केस के लिए आई है वर्सेस एक फेक लड़की की प्रोफाइल जो ये सब करने आई है, एल्गोरिथम को बहुत इजीली पता चल जाता है उसके बिहेवियर पैटर्न से, क्योंकि हमें पता रहता है कि यार एक रियल यूजर का ये बिहेवियर पैटर्न है और एक बैड एक्टर का ये बिहेवियरल पैटर्न है। उसके बेसिस पे द काइंड ऑफ मैसेजेस दे आर सेंडिंग, काइंड ऑफ बिहेवियर दे आर डूइंग इन दोस मैसेजेस, इट्स इजी फॉर अ पर्सन डिटेक्ट एंड वार्न, राइट। तो हमने वो लगा रखी है वार्निंग, हम बंदे को सामने उसी वक्त वार्न कर देते हैं, और अगर हमारा रेड स्कोर हम इंटरनली एक ट्रैक करते हैं हाई होता है तो प्रोफाइल भी ब्लॉक कर देते हैं। So, like, say, for instance, on an average, like, how many profiles you purge from your platform on an 42%. 42%? Yeah, that's as good as saying no to 42% of revenue. Correct. But you see that there are like some cons to it also, like the rise of internet adoption, digital, but the new kind of scams happening. You must be using Google Pay and all these kind of यार platforms. बट स्कैम देखो ना 2011 में भी हुआ हमारे साथ Correct, मैट्रिमनी साइट पे, correct. उसी वजह से हमने ये बनाया कि Correct, ट्रस्ट स्कोर correct, वगैरह का सब correct. कुछ हो। स्कैम्स तो हमेशा से होते आ रहे हैं यार, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, सही बात। जहाँ पे भी दो लोग छोड़ो यार बस स्टैंड के बाहर खड़े हो जाओ वहां भी हो जाता अरे है। तो स्कैम तो हर जगह पे ही होते आ रहे हैं, बस वो तरीका बदलता जा रहा है, हाँ, है ना। अल्टीमेटली अपने को हमें खुद ही अपनी अवेयरनेस हाई रखनी पड़ेगी एंड एजुकेटेड रहना पड़ेगा टू सेव आवरसेल्व्स। and especially in like say smaller towns where say tech who are like people, especially people who are not that tech savvy, right? बिल्कुल They are not understanding नंबर पहले से आ गया यार, हाँ। टेलीग्राम लिंक आ गया, या फिर इस पे मुझे जल्दी से 500 रुपए जीपे कर दो, बिल्कुल मैं तुम्हें लौटा दूंगा या दूंगी, राइट? बिल्कुल यार, ये भी इवन देखो ना कैसे कैसे लोग गूगल पे कोई नंबर सर्च करते हैं कुछ दुकान का या डिलीवरी का, एंड स्पेशली आई थिंक ये तो ज़्यादातर गुड़गांव में मैंने सुना है कि कोई किसी लिकर शॉप का नंबर सर्च किया गूगल पे एंड वो कोई स्कैमी नंबर जमतारा वाले स्कैम ऐसे तो होते थे ना Correct. कि उस पे चला गया, उसने बोला हाँ मैं भिजवा दूंगा इतने रुपए कर दो, कर दिया अपने यूपीआई, नहीं आया कोई ऑर्डर कभी, राइट। तो वो स्कैमर बैठा है जिसका फुल टाइम जॉब है स्कैम करना। There is one topic which also wanted to bring up before we get into the last part of our conversation. Recently, Tuli Madly was in news with a small tussle with Google, right? It delisted your platform, then again relisted, right? So, if you have to explain what happened and what is the future course of action. यह तो स्मॉल टसल नहीं काफी बड़ा टसल है, पिछले 4 साल से लीगल बैटल्स जारी हैं। पहले सीसीआई का काफी क्लियर ऑर्डर आ चुका है कि तो बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन इज गूगल ये कह रहा है कि जो एप्स डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर रही हैं उनसे मैं 30% हफ्ता ही है वो कमीशन 30% हफ्ता लूंगा, करेक्ट 30%, क्योंकि एंड जबकि हम लोग सेम जो पेमेंट प्रोसेसिंग अपनी 1-2% पे पेटीएम पेयू रेजर पे सब करते हैं उस पे कर रहे हैं, है ना, एंड 12 रुपए हो जाता है। गूगल ऑल्सो मेड सम चेंजेस एज वेल, राइट? यार वो ये कर दिया कि आप 1 मिलियन से कम कमा रहे हो साल में तो मेरे को 30 की जगह पे 15 दे देना, एंड अगर मेरे नीचे कोई यूपीआई यूज करना है तो 4% कम कर दे के 11 कर देना और 26 कर देना, कि वो सब आई वॉश है, वो सब ना मीडिया में और न्यूज में आपको क्योंकि वो करना है कि भाई कंफ्यूज, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, राइट। तो वो प्रोपोगेंडा है, वो कंफ्यूजन फैला रहे हैं ताकि लोगों को डेप्थ में समझ ही ना आए। अब आप ये सोचो सेम ऐप अमेजोन की है, उबर की है, उनसे तो ऐसा कुछ नहीं चार्ज कर रहा, उबर भी मैच मेकिंग ही कर रहा है ना एक तरीके से, करेक्ट है ना। तो उनसे नहीं चार्ज करता, अमेजोन से नहीं चार्ज करता, फिर क्यों सिर्फ कुछ एप्स जो डिजिटल सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड कर रही हैं उन पे क्यों हमें कुछ ऐसा अलग से भी कुछ नहीं दे रहा है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, और सीसीआई ने क्लियरली बोल दिया था गूगल को कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, यू कैन नॉट फोर्स एनी डेवलपर टू यूज योर, एंड ये बंडलिंग है ना जबरदस्ती की
कि भाई क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेरा प्ले स्टोर तो मेरा पेमेंट गेटवे। एपिक लड़ रहा है यूएस में, हाँ। यूरोप में, क्योंकि अब जब एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन थोड़ी होता है, तो सिर्फ आपने अपलोड किया और वो टिक किया हो गया। कह रहा है कि भैया ये तो पहला एक वो उसमें हमें थोड़ी रिलीफ मिली। तो अभी तो वही लड़ाई चली जा रही है कि सूट मेंटेनेबल भी है या नहीं। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल होने को है। अभी सुप्रीम कोर्ट में तब मद्रास हाई कोर्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन मिली हुई थी कि आप डीलिस्ट नहीं कर सकते। फिर जब वहां पे खत्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने फिर 1 मार्च की बात है शायद, हाँ 1 मार्च को मेल आता है कि भैया आपकी ऐप हटा रहे हैं विद इन 2 आवर्स। ऐप कुछ 10-20 प्लेयर्स हैं हम जो सबकी, कुकू एफएम, स्टेज, मैट्रिमनी, शादी, जी 99 एकर्स, ऐसे सब लोगों की ऐप्स जिसमें भी ऐसे डिजिटल सब्सक्रिप्शन थे उड़ा दी कि भाई क्योंकि तुम फॉलो नहीं कर रहे। तो फिर हमने थोड़ा सा एक्शन में आए कुछ लोग एडीआईएफ की मदद से, एंड वी देन रीच्ड आउट टू द मिनिस्टर्स and but the credit where is due Monday morning, first working day, we met both our union minister and minister of state. Then Tuesday again honorable minister Rajiv Chandrasekhar they called us again, साथ में गूगल इंडिया के हेड को भी बुलाया बॉम्बे से, एंड उनको बोला कि यार 100-150 दिन एक फोरम क्रिएट करो जहाँ पे यू ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। बट उसमें कुछ खास प्रोग्रेस हुआ नहीं है बिकॉज गूगल अपने एक मीटिंग रखी, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो अभी लीगल चल रहा है तो हम कुछ बात कर नहीं सकते क्रिएट करने का एंड कुछ करने का। तो देखो चल रहा है अभी, वो चलेगा लंबा। अभी कुछ अच्छे नए लॉज आ रहे हैं, अभी यूएस में सॉरी यूरोप में अभी डिजिटल मार्केट्स एक्ट आया। अब उसके बेसिस पे यूरोप में ऑलरेडी एक्शन हो रहा है इस पे, जो गूगल एंड एप्पल ये ऐप स्टोर कमीशन वाला केस चल रहा है उनका, तो उस पर ऑलरेडी एक्शन हो रहा है। डिजिटल कंपटीशन बिल जो आ रहा है तो अभी काफ़ी लॉबी कर रहा है, गूगल भी काफ़ी लॉबी करा रहा है कि मतलब खराब है, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। जबरदस्ती के कोर्ट्स आ रहे हैं कि यूरोप में भी इस लॉ ने कोई फायदा नहीं किया इस वाले प्रॉब्लम के लिए, जबकि सब बकवास है। हो रहा है वहाँ पे एक्शन, अभी तो 8-10 महीने ही हुए ना वहाँ पे भी तो लॉ आए हुए, राइट, ऑलरेडी काफ़ी एक्शन हो रहा है, बहुत एक्चुअली लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगी फॉर इंडियन फाउंडर्स। एंड देयर इज ऑलवेज बीन अ कन्वर्सेशन कि इंडिया का अपना एक ऐप स्टोर होना चाहिए व्हिच इज इक्विवेलेंट ऑफ गूगल प्ले स्टोर, एंड आई एम श्योर कुछ एफर्ट्स किए भी गए, बट वो उसको यार फिर वो कन्वर्सेशन नहीं हुई। यार वो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज आप सोचो ना इतनी टाइट मोनोपोली है, एंड कंपटीशन कमीशन का काम ही यही होता है कि यार बंडलिंग रोक, क्योंकि यार अगर एक बंदे ने गूगल ने अपनी एंड्रॉयड पे 97% की मोनोपोली इंडिया में बना के बैठा है। करेक्ट। अब एंड्रॉयड एग्रीमेंट्स होते हैं ओईएम्स के साथ, उसमें दे डोंट अलाउ, उसमें ही उनकी सेटिंग्स ऐसी हो रखी होती हैं कि नहीं ये नहीं अलाउ, एंड ये वाले एग्रीमेंट्स कभी हाथ भी नहीं आते सीसीआई के, बिकॉज ये तो चाइना वाले कंपनी के साथ हो रखा है। तो वो रियल पिक्चर कभी किसी केसेस में भी नहीं आ पाती कि कितना पैसा वो दे रहे हैं उनको अपना डिफॉल्ट बनाने के लिए और ऐप स्टोर ना डालने के लिए। एंड ऐसे मतलब बहुत सारे जो पूरा कभी कभी देखोगे सीसीआई का जो वर्डिक्ट भी आया था जिसमें कुछ 1100-1200 करोड़ का फाइन भी लगा था इन पे। बहुत बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली इन्होंने ना ये बिल्ड की है। तो बंडलिंग बोलते हैं इसको सीसीआई के टर्म्स में, कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अमेजोन का ऐप स्टोर नहीं टिक पाया यार, कौन से ऐसे बिजनेस है जो अमेजोन के नहीं चले, करेक्ट। ऐप स्टोर डील करना पड़ गया। दैट वाज द मिनी ऐप स्टोर, वो है ऐप के अंदर, वो अलग चीज है यार, कोई ऐसे बना ही नहीं सकता बिकॉज एंड्रॉइड की जो नेटिव फंक्शनैलिटीज है उसका एक्सेस ही नहीं देते, करेक्ट है ना। तो गूगल प्ले सर्विसेज जो इन्होंने जबरदस्ती बंडल कर रखी है इसके अंदर, उसका एक्सेस ही नहीं देते। तो वो ये सब ना होएगा, वो धीरे धीरे ओपन अप करना पड़ेगा, बट ठीक है वो फाइट चालू है। Okay. So before we part ways, like I want to understand what is your vision for, or how do you envision future of dating applications or dating in general, and especially in context of tech? यार फ्यूचर इज हार्ड टू प्रिडिक्ट, बट व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट इज कि पीपल विल कीप मीटिंग। अगले 15 साल में 40 करोड़ शादियां इंडिया में होंगी। दैट्स 80 करोड़ पीपल हु विल गेट मैरिड इन नेक्स्ट 15 years. दैट्स योर टाइम। वो कैसे मिलेंगे
किस मीडियम से मिलेंगे। ऑलरेडी हम देखा है कि मीटिंग ऑनलाइन एज अ मीडियम फॉर पीपल टू मीट इज रैपिडली इंक्रीजिंग, एंड यूएस में तो अभी आई थिंक 80-90% शादियां ऑनलाइन ही में है मोस्ट लोग, राइट। तो वो इंडिया में भी होगा। इंडिया तो बल्कि लीपफ्रॉग करता है ऐसी चीज़ें, बिकॉज इतना ज़्यादा डिवाइस पेनिट्रेशन तो कहीं है ही नहीं, इतना ज़्यादा इंटरनेट सस्ता तो कहीं है ही नहीं। तो अभी तो आई वुड से कि मार्केट बहुत छोटी है एक्चुअली में। अगर हम पेनिट्रेशन देखें इंडिया की, इट इज़ नॉट इवन 3% येट, इट्स लेस देन 2.5 और समथिंग। तो काफ़ी बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा टाइम है। अभी तो मार्केट जस्ट शुरू हो रही है। अभी तो कुछ साल पहले तक तो टैबू कैटेगरी ही थी, धीरे Dating धीरे app. ये एक्सेप्टेंस हो रही है, हम्म, राइट, एंड फिर ये एक्सप्लोड करेगी। तो अभी एंड टेक्नोलॉजी विल प्ले अ बिग रोल, एआई विल प्ले अ बिग रोल, प्रोबेबली एआर वीआर विल प्ले अ बिग रोल। फर्स्ट मीटिंग मेरी जूम, जैसे आज भी पोस्ट पेंडेमिक ट्रेंड जो है, फर्स्ट डेट हैपेंस ऑन जूम वीडियो, क्योंकि नहीं दूर है या फिर नहीं भी अगर कर पा रहे, तो बिफोर दे मीट ऑफलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट वीडियो पे एक बार लेते हैं ना, ताकि पता लग गया कि यार यही है, ऐसा ही दिखता है, ऐसी ही दिखती है, राइट। तो वो, और एंड विद वीआर एंड एआर वो आप कर ही रहे हो तो वर्चुअली मिल ही रहे हो, तो अच्छे बैकड्रॉप में मिल लो, तो वो भी होगा। तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई थिंक अगले 10 साल काफ़ी एक्साइटिंग भी होने वाले हैं स्पेस के लिए, एंड हम देखेंगे कुछ काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनीज बनेंगी इंडिया में। All right. Thank you so much for taking out time and had a lovely conversation. थैंक यू, Thank you. थैंक यू फॉर हैविंग।